یہ جو روحانی عامل ہے نا، روحانی عامل جو جن چڑیل بھوت بھگاتے ہیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، ڈرائیون کا مقیم ہو، تبلیغ میں سال لگا ہوا ہو، بزرگوں نے خلافت دی ہوئی ہو، کبھی کسی سے متاثر مت ہو. یہ کخ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی علوم نہیں. علم تو کہتے ہیں علوم ہے، علوم علم بھی نہیں ہے. علوم تو بہت آگے کی چیز ہے. یہ کسی کا نہ کچھ بنا سکتے ہیں، نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، لیکن بغیر یہ کمپنی کی پروڈکٹ ہے. میں بعض دفعہ کھانا کھانے کے لیے جاتا ہوں، میں نے منگوائی بھنڈی، وہ کچھ اور بھی لا کے رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہماری ہوٹل کی یہ خاص سوغات ہے، یہ ہم ہر گیسٹ کو دیتے ہیں، حالانکہ میں نے منگوائی نہیں ہے وہ. تو آپ یہ ٹاپک پر بات سننے کے لیے آئے نہیں ہو، لیکن چار شادیاں اور عامل کے خلاف یہ میری پروڈکٹ ہے جو میں لازمی آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ آپ کو سننا پڑے گا، چاہے آپ کو خوشی ہو یا آپ کو غم ہو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ چار شادیوں میں تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن یہ عامل لوگ جو ہیں، خدا کے لیے ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور اس پہ چیخنا اس لیے پڑتا ہے کہ اس میں علماء مبتلا ہیں. علماء جب کسی چیز میں آ جائے نا، تو پھر لوگوں کے دماغ سے اس کی عقیدت نکالنا بہت مشکل ہے. اور علماء بھی برحق علماء، وہ علماء جن کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا دماغ ان لوگوں نے خراب کر دیا ہے. عاملوں نے ان کو بیوقوف بنایا ان لوگوں نے. علماء جب باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، نہیں بھائی علوم، حضرت پہنچے ہوئے علوم ہے، علوم. میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ آپ اتنے بڑے بزرگ ہو، اتنے بڑے مفتی ہو، آپ کے دماغ کو کیا ہو گیا؟ ہر بڑے عالم کے ساتھ پھلترو کی طرح کوئی عامل گھوم رہا ہوگا کہ حضرت کو نظر لگی ہے، یہ نظر اتارنے والا ہے. ہر بڑے بزرگ کو نظر لگ رہی ہے آج کل مارکیٹ میں، فالج ہو رہا ہے تو جادو چل رہا ہے ان کے اوپر، فلانے نے کچھ کر دیا. 2-3 بڑے بڑے بزرگ تھے، ان کے ساتھ 2 عامل پھلترو کی طرح ہر وقت چپکے رہتے تھے. یہ ان پر دم کرتے ہیں. میں نے کہا ان کو بھگاؤ، یہ کروڑوں روپے کما رہا ہے آپ کے نام کے، پھلترو کو نکالو یہاں سے. تو ایک میرے ساتھ عزم کرو. میں نے ابھی بیعت کرنا شروع نہیں کیا، لیکن جب میں بیعت کروں گا نا، تو جو بھی میرے ہاتھ پہ بیعت ہوگا، میں اس کو یہ بولوں گا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ اپنی نسلوں کو روحانی عملیات سے بچاؤ گے، نسلوں کو، ورنہ میں بیعت ہی نہیں کروں گا. چاہے جن آئے نہ آئے، بھوت آئے، چڑیل آئے، عامل کے پاس بولو نہیں جانا. کوئی تعویذ نہیں، کوئی روحانی، سب ڈرامے بازی ہے. تعویذ کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن چھوڑ دو. جواز عدم جواز کی جو جائز تعویذ ہے، اس کے جواز کا میں قائل ہوں، لیکن اس بحث میں نہیں پڑھو. پوری زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں. فلانے نے کر دیا، فلانے نے کچھ کر دیا، ڈمکانے نے کچھ کر دیا، فلانے جٹھانی نے ساس پہ کر دیا، ساس نے بہو پہ کر دیا، بہو نے سوکن نے ایک سوکن پہ کر دیا. آپ بڑے بڑے مدرسوں میں جاؤ گے نا اپنے گھر کے جھگڑے لے کر، وہاں کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہوگا روحانی، وہ بتائے گا آپ کی، میں نکالے گا، بولے گا اصل میں آپ کی جٹھانی نہیں، آپ کے اسلام کہہ رہے ہیں رشتوں کو جوڑو، اور آپ جٹھانی پہ بلی ڈال کے، وہ پہلے ہی دونوں توے پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. جٹھانی اور جٹھانی کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ جو بھی ہوتی ہے خاتون، اس کی جو جٹھانی اور وہ خود، وہ دونوں ایسے ہوتے ہیں ہر وقت جیسے گرم توے پہ پہلے لڑنے کے لیے تیار ہیں. جب آپ نے کہہ دیا کہ اس نے کچھ کیا ہے، تو بس اب قیامت تک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع. اس لیے اس شہر سے نکلو. انگریز نے ترقی کیوں کی ہے؟ وہ اسباب کو دیکھتا ہے. اسباب پیدا کس نے کیے ہیں؟ اللہ نے. لہذا اسباب کو دیکھنا یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے. جو کام اللہ نے جس چیز کا رکھا ہے وہ تو اللہ نے رکھا ہے نا. دیکھو ایک آدمی کیا کرتا ہے، بھوک لگتی ہے روٹی کھاتا ہے. اب کوئی اس سے کہے کہ بھوک لگ رہی ہے روٹی کھا رہا ہے، کیوں؟ کہہ رہے بھائی سبب یہ ہے، سائنٹیفک لاجک ہے، جب بھوک لگے گی تو روٹی سے پیٹ بھرے گا. سارے سائنسدان اس پر متفق ہیں. کوئی کہے ابے تو سائنس کو مانتا ہے؟ ہم تو صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں بھائی، ہم سائنس کو لفٹ نہیں کراتے. یہ مذہب کے نام پہ حماقت اور بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو بھائی مذہب نے کب کہا ہے کہ یہاں سائنس غلط ہے؟ بھائی یہ اسباب کس نے پیدا کیے ہیں؟ اللہ نے پیدا کی. صرف ابراہیم علیہ السلام واحد تھے جن کو آگ میں ڈالا گیا نہیں جلے، ورنہ دنیا میں کوئی بھی آگ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ جلے گا وہ. کوئی کہے عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہو گئے، لہذا میں وداؤٹ میرج میں بھی چاہتا ہوں میرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہے عیسیٰ علیہ السلام کے کیسے ہو گیا، حضرت مریم کے کیسے ہو گیا وداؤٹ ہسبینڈ؟ تو اسے کہا جائے گا بھائی وہ اللہ کی ایک قدرت کی نشانی تھی، وہ illogical کام تھا جو اللہ نے کر کے اپنی قدرت ظاہر کر دی. لیکن اللہ کی عادت کیا ہے کہ جو کام ہوتا ہے وہ اسباب کے تحت ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ گھروں میں جب لڑائیاں ہوتی ہیں تو جب بھی کام ہو رہا ہے نا تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، یہ ذہن میں رکھو. ایسا ہوتا نہیں. نیوٹن کیا بول کے گیا تھا؟ غلط بولا تھا نیوٹن نے. نیوٹن کہہ کے گیا تھا کہ جو چیز رکی ہوئی ہے قیامت تک رکی رہے گی، جب تک اس کو حرکت دینے کا کوئی سبب نہ ہو. حرکت ایک کام ہے نا، تو جب تک کوئی محرک نہیں ہوگا وہ حرکت میں نہیں آئے گی. اور جو چیز چل رہی ہے وہ رکے گی نہیں جب تک کوئی روکنے والی شے نہ ہو.
अगर आप ये जिन चुड़ैल भूत के चक्करों में पड़ते हो ना, तो आप एक नया लॉ बनाओ। फिर पहले मैं न्यूटन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ना, यानी जब भी कोई काम हो रहा है ना, तो काम के पीछे कोई सबब बोलो है, कोई सबब है। घर में लड़ाई हो रही है, इसका मतलब इसके पीछे कोई सबब है। या तो आप किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, इस पे गुस्सा आ रहा है उसको, या आप उसके हुकूक अदा, आप बीवी के हुकूक अदा नहीं कर रहे, इस पे गुस्सा आ रहा है उसको, लड़ाई हो रही है। माँ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बीवी को तरजीह दे रहे हैं, सास बहू का आपस में क्या हो रहा है, इख्तलाफ हो रहा है। या तो सास जालिम है या बहू जालिम है, या जिठानी गड़बड़ कर रही है, आप सही चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है। अब गोरे के साथ जब गड़बड़ होती है तो गोरा उसकी लॉजिक तलाश करता है, सबब तलाश करता है। सारे माहिरीन मिलके बैठ जाते हैं कि हम अफगानिस्तान में पिटे क्यों, वो गौर करते हैं इस पे, वो जिन्नात पे नहीं डाल देते। कभी अमेरिकन आर्मी का बयान आया कि हम 40-42 मुल्क लेके अफगानिस्तान में उतरे थे, एक्चुअली वहां पे जिन्नात थे जिसकी वजह से हम जीत नहीं सके। कभी ऐसा कुछ फेंकी उन्होंने? बोलो ना क्या हो गया भाई। उनके यहां अगर ये रूहानी ड्रामेबाज होते, कहते भाई वो असल में तुम्हारी ताकत तो बहुत है, लेकिन वहां जिन्नात है, जिन्नात से कौन लड़ सकता है। वो अमल की हम पर फ्रांस ने जादू किया हुआ है। असल में अमेरिकन पे किसने जादू कर दिया था? फ्रांस पे। फ्रांसीसियों पे जादू किया जापान ने, जापान पे जादू किया स्विट्जरलैंड ने। आप कह सकते हो स्विट्जरलैंड कैसे जादू करेगा? जब जिठानी कर सकती है तो स्विट्जरलैंड की ताकत जिठानी से ज्यादा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? वो तो सारे जितने भी आमिल हैं उनको स्विट्जरलैंड का सिर्फ विजिटिंग वीजा भी दे देना तो सारे आमिल उसके कहने पर जादू शुरू कर देंगे। निकालो अपने आप को इस टेंशन से, मुसीबत से। तो वो गलती दोबारा नहीं दोहराते जो गलती उनसे एक बार हो चुकी है। गोरा नहीं दोहराएगा उस गलती को, हम बार बार उस गलती को रिपीट करते हैं, बार बार उस गलती को रिपीट करते हैं। और जब नाकामियों का मुंह देखते हैं तो रूहानी ड्रामेबाज हमें कहता है असल में तुम पर किसी ने कुछ कर दिया है। फिर निकलना भी शुरू हो जाती हैं चीजें, वहां से फलीता निकला, वहां से पलीता निकला, वहां से किसी के नाखून निकले। मुझे लोग लाके दिखा, मैं कचरे में डाल, मेरे घर से भी तावीज निकलते हैं, मैं कचरे में फेंक देता हूँ। कोई आ जाता है चुपके से कुछ रख के चला जाता है, जरा भी मुतासिर में कहता हूँ अबे तूने जो रखना है बोलो रख दे भाई, कुछ भी नहीं होने वाला इंशाल्लाह। तो इस शहर से निकलो, समझ रहे हो? ये बहुत मुश्किल है निकालना। क्यों? और मैं आपके सामने इतने कॉन्फिडेंटली बात करता हूं, मैं उलमा के सामने नहीं करता, क्योंकि मुझे आगे से मुखालफत का सामना करना पड़ता है। वो कहते हैं आप तो उलमा के सामने कौन ऊंची आवाज से बात करे। मैं कहता हूं आवाम को समझाओ भाई। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब आपका इल्म क्या उलमा से भी ज्यादा है, आप उनसे भी 2 हाथ आगे निकल गए। कतन नहीं, हम ये कहते हैं ये इल्म ही नहीं है तो ज्यादा कम की क्या। उलमा का इल्म हमसे दीन के इल्म में ज्यादा है। हम जितने हमारे अकाबिर हैं, बुजुर्गान दीन है, दीन की जहां बात आएगी हम सरेंडर कर देंगे। मेडिकल के साइंस की बात आएगी तो डॉक्टर को मानेंगे या उलमा को मानेंगे? डॉक्टर को मानेंगे। अब डॉक्टर कह रहे ये दांत निकलवा दो, हजरत जी बुजुर्ग कह रहे नहीं निकलवाओ, तो भाई मैं किसकी मानूंगा? अब कोई कहे यार आप उलमा से आगे निकल रहे हो, भाई मेडिकल साइंस में तो मेडिकल साइंस के उलमा की राय का एतबार होगा, शरीयत में किसकी बात का एतबार होगा? तो ये जो रूहानी ड्रामेबाजी है ये शरीयत का इल्म बोलो नहीं है ये। और याद रखो आप जितने हो ना टोटल इतने ही हो, आपके साथ कोई हमजाद कोई मुवक्किल नहीं है। ये कह रहे हो तुम्हारे तुम वो एक तुम्हारा हमजाद है। एक मंतिकी गया अपने गांव में, लोगों ने पूछा तुम क्या पढ़ कर आए? वो मंतिक पढ़ी उसने। उन्होंने बोला भाई क्या पढ़ा है तूने इतने सालों में? कह रहा मंतिक पढ़ी है। कह रहा बता तो सही। उसने कहा सुबह नाश्ते में बताऊंगा। तो नाश्ते में उसकी अम्मा ने 2 बॉयल अंडे बनाए, एक अब्बा के लिए और एक बेटे के लिए। तो बेटे ने कहा अब्बा ये अंडे हकीकत में तो 2 हैं, लेकिन तसव्वुर की दुनिया में ये 3 है। एक ये अंडा, एक ये अंडा और एक इन दोनों का मजमुआ। वो एक अलग उसकी तसव्वुर है ना, एक ये अंडा और एक ये अंडा, ये इनफिरादी हैसियत है, और एक इनकी मजमुई हैसियत से वो क्या है? दोनों का मजमुआ, वो एक अलग चीज है। अब्बा ने 2 अंडे के खाए, बोले मजमुआ तू खा ले बैठ। मजमुआ कौन खाएगा? वो तू खा जा। तो आमिल भी कहता है एक आप हो, एक आपका हमजाद है, एक मुवक्किल है। पता नहीं क्या अगर ड्रामेबाजी, जितने गाढ़े अल्फाज लेकर आते हैं ना, जिनका ना सर ना पैर। लोग कहते हैं उलूम, ये क्या है भाई? उलूम है भाई, बहुत ऊपर की बातें हैं भाई, इनको तो समझने के लिए हमारे वो दिमाग ही नहीं है भाई। ये इसलिए समझ में नहीं आ रही कि बातें ही ठीक नहीं है, ये कोई दलील नहीं है इन पर। मुशरिकीन जिस शिर्क में मुब्तला हुए उसकी बेस थी तवहुम परस्ती। इम्कानात की दुनिया में बहुत कुछ मुमकिन है, हमने इम्कानात की दुनिया को नहीं देखना, हमने दलाइल की दुनिया को देखना है। जिस चीज का दलील से सबूत होगा उसको माना जाएगा, सबूत नहीं है तो इम्कान तो बहुत कुछ हो सकता है। देखो मैंने केस किया जैद पर कि इसने मेरे 1 लाख रुपए चोरी किए, जज ने बुलाया, जैद ने मेरे खिलाफ केस किया,
सॉरी, मैंने जैद के खिलाफ केस किया कि जैद ने मेरे 1 लाख रुपए चोरी। आप लोग को सब आवाज साफ आ रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही ना आवाज में? मैंने जज के सामने कहा जी जैद ने 1 लाख रुपए चोरी किए। जज ने कहा तुम्हारे पास दलील क्या है? मैंने कहा गवाह। क्या मैं पागल था? उस वक्त गवाह लेके घूम रहा होता? जब ये चोरी कर रहा था तो मेरे पास अगर गवाह होते तो मैं चोरी करने देता इसको? मैं तो पकड़ के कुट लगाता। जज क्या, अच्छा कोई कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखा दो। जज साहब अगर वहां कैमरा लगा होता तो ये चोरी करता? इसने ऐसी जगह चोरी की है जहां कैमरा नहीं लगा हुआ था। जज क्या है भाई, मैं जज डाल देगा, जैद को चोर करार दे देगा? बोलते क्यों नहीं भाई? अब जज कह रहे ये जैद बरी है। मैं कहूं जज साहब क्या इस बात का इम्कान नहीं कि मैं सच बोल रहा हूं? जज क्या कहेगा, 100% इम्कान है, लेकिन इम्कान की बेस पे कभी फैसले नहीं होते। इम्कान तो बहुत, इम्कान तो इस बात का भी है कि आपने चोरी की हो और ये केस ही ना कर रहा हो इस बेस पे कि गवाह नहीं है, इसका भी तो इम्कान है। इम्कान तो इसका भी है कि 1 लाख नहीं 1 करोड़ चोरी की हो। पता नहीं क्या क्या इम्कानात दुनिया में है। कभी इम्कान की बेस पे फैसला नहीं किया जाता। मुशरिकीन जो ये करते थे कि ये बुत हैं जो अल्लाह ने इनको इख्तियारात दे रखे हैं, ये बुत हमें औलाद देगा, ये वाला बुत हमें हमारी शादी कराएगा, ये वाला बुत जो है हमें रोजगार देगा, ये वाला बुत हमारे बीमारों को ठीक करेगा। जैसे हिंदू यही कहते हैं ना, हिंदुओं के बहुत सारे भगवान हैं, ये वाला भगवान ये काम करेगा, ये वाला भगवान ये काम करेगा, ये थोड़ा महंगा भगवान है, ये ज्यादा बड़े बड़े काम करेगा, ये थोड़ा सस्ता वाला भगवान है, ये थोड़े कम रेट वाला भगवान है, 20 किस्म के। अब जब उनसे पूछा जाए, पहले मुशरिकों से भी पूछा जाता था भाई तुम्हारे पास क्या दलील है ये करेगा? वो कहते थे दलील नहीं थी, वो कहते थे हमने अपने बाप दादा से सुनते आए हैं, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है कि अल्लाह इनको इख्तियारात दे दे? इम्कान तो है ना कि हो सकता है अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दे दी। जैसे आज हम जब मुशरिक से बात करते हैं कि इन बुजुर्गों के पास बिल्कुल इख्तियारात नहीं है, वो कहते हैं, जवाब ये देते हैं कि भाई इनका अल्लाह से ताल्लुक है, तो अल्लाह अगर अपने बंदों को औलाद देने का इख्तियार दे दे, बिगड़ी बनाने का इख्तियार दे दे, तो इन वहाबड़ों को क्या तकलीफ हो रही है इस पे? कहते हैं कि नहीं कहते? भाई तुम लोगों को क्या तकलीफ है इस पे? अगर अल्लाह देना चाहे तो कौन सी रुकावट है? भाई अल्लाह देना चाहे तो कोई रुकावट नहीं है, लेकिन इतना काफी नहीं है कि अल्लाह देना चाहे तो दे सकता है। दलील होनी चाहिए कि दिए भी हैं कि नहीं दिए। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में। इम्कान की दुनिया में तो बहुत कुछ क्या है पॉसिबल है। इम्कान की दुनिया में तो ये भी मुमकिन है अल्लाह इस लकड़ी को इख्तियार दे दिया हो, इस चश्मे को इख्तियार दे दिया हो। अल्लाह ने देगा क्यों? कुरान कहता है कि ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम, अल्लाह तुम्हारी मिसालें बयान करता है, तुम्हारे अंदर की मिसालें बयान करता है। तुम्हारे जब गुलाम होते हैं, अरब में गुलाम की जितनी प्रॉपर्टी थी उसका मालिक उसका मौला हुआ करता था। तो क्या तुम गुलामों को अपने इख्तियारात में अपने साथ शरीक करते हो? कोई भी नहीं करता। तो मैं इस मखलूक को जो मेरे नजर में गुलामों से बदतर है, कमजोरी में, रुतबे में नहीं, कमजोर होने में, मैं उनको अपने साथ इख्तियारात में शरीक क्यों करूंगा? तो हर शिर्क की इब्तदा कहां से होती है? तवहुम परस्ती। मे बी, इंग्लिश का लफ्ज है ना, मे बी, हो सकता है, हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो सकता है ऐसा हुआ हो। भाई हो सकते पे हम नहीं जा सकते। आजकल आपने देखा होगा बच्चे को नजर लगे, खवातीन मिर्चें जला रही होती हैं, अजीब अजीब टोपे ड्रामे कर रही होती हैं। हो सकता है भाई इससे नजर क्या हो जाए, भाई इसकी दलील क्या है? तो खवातीन ये दलील देती हैं, फला की नजर उतर गई, बच्चा रोता था जब मिर्चें जलाई। भाई बात यह है कि शैतान जो है ना, शैतान, उसको पता होता है कि मैं जिस बच्चे को छेड़ूंगा इसकी माँ उल्टी सीधी हरकतें करेगी, फिर मैं छेड़ना छोड़ दूंगा ताकि उन उल्टी सीधी हरकतों पे इसका ईमान बढ़े। जो माएं ये काम करती नहीं है उनके बच्चे बिला वजह रोते ही नहीं है। जब कोई माकूल रीजन होती है तो रोते, वरना नहीं रोते। तो ये जो रूहानी आमिलों के पास जाने वाले लोग हैं, शिर्क करने वाले लोग हैं, शयातीन इनसे खेलते हैं। शयातीन को पता है कि ये इन पर ईमान रखते हैं, लिहाजा इनको तंग करो। जब ये आमिल के पास जाएंगे तो तंग करना छोड़ दो, और जो कि जाता ही नहीं है तो शैतान कहता है भाई यहां टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, इनको तंग करने की जरूरत है ही नहीं। मेरे ऊपर जिन क्यों नहीं आ जाते? मैं इतना आमिलों के खिलाफ 25-30 साल से बोल रहा हूं, एक भी जिन ऐसा भी नहीं कि कोई मजाक करके चला गया हो मेरे साथ, बहू करके गया हो। मैं 25 साल से आमिलों के खिलाफ, और जिन ये जो जिन चुड़ैल भूत के ड्रामे शुरू किए, मैं बोल रहा हूं, कोई एक भी नहीं है। हमारे घर में भी सब कुछ होता है भाई, जो नॉर्मली लोगों के बच्चे बीमार भी होते हैं, ठीक भी होते हैं। मुझे नहीं याद कभी मैं किसी आलिम के पास गया हूं कि फलीता कोई पलीता। आज हर दूसरा आदमी फला ने कर दिया है, फला ने नजर लगा दी है। नजर बरहक है, लगती है, इतनी नहीं जितनी आजकल लोगों को कोई चीज ही नहीं नजर लगने के लिए तुम्हारे पास। यार कोई बहुत ही अचंभे का काम हो तो इम्कान होता है। जैसे याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, 11 बेटे, सारे खूबसूरत कड़ियल जवान,
مصر کے ایک دروازے سے داخل ہو رہے ہیں. یوسف علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اکیلے یوسف کو اللہ نے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, آدھا حسن اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. اس کائنات میں جتنا حسن بانٹا ہے نا, اس میں سے آدھا اکیلے کس کو دے دیا؟ یوسف کو. تو ان کے بھائیوں میں بھی تو کچھ چمک ہوگی نا حسن کی. اتنے حسین لمبے لمبے 11 بیٹے جب ایک باپ کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو نظر لگنا سمجھ میں آتا ہے. اس لیے یعقوب علیہ السلام نے فرمایا متفرق دروازوں سے داخل ہونا. پھر بھی اللہ سے توبہ استغفار کیا کہ جو اللہ چاہے گا ہوگا وہی, میں صرف ایک اسباب کے درجے میں احتیاط کر رہا ہوں. آج 11 بیٹے ہوتے کس کے ہیں؟ ایک آدھ دو بچہ, اس کو نظر لگنے کا کوئی خطرہ, بولو وہ نظر لگے تھے تو 2 رہ گئے تھے, سمجھ رہے؟ پھر وہ حسن و جمال ہوتا ہے نہ, وہ برگر کھلا کھلا کے تو بچوں کو موٹا کیا جا رہا ہے, اس میں وہ پرسنالٹی نہیں ہوتی, کوئی شخصیت نہیں ہوتی. وہم, عورت کو حسن کی نظر لگ رہی ہے, بچوں کو کسی نے تھوڑی سی تعریف کر دی, کتنا پیارا بچہ ہے, ایک دم اس کو نظر لگ گئی. اتنا زیادہ وہم کی دنیا میں بھائی مسلمان دھستا چلا گیا ہے. مذہب صرف اتنا ہی رہ گیا ہے. مذہب سے جو مسلمان کا تعلق ہے نا وہ اتنا رہ گیا ہے کہ فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, فلانی صورت پڑھنے سے یہ ہو جاتا ہے, فلاں سے یہ جن بھاگ جائے گا, فلاں سے چڑیل بھاگ جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے پیسے آ جائیں گے, فلاں صورت پڑھنے سے غربت دور ہو جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے فلاں جگہ شادی ہو جائے گی, فلاں صورت پڑھنے سے یہ ہو جائے گا. بس صحابہ کرام کی اگر زندگی اسی کے گرد گھومتی تو نہ وہ تجارت میں ترقی کرتے, نہ ٹیکنالوجی میں ترقی کرتے, نہ دیگر سائنسی علوم میں ترقی کرتے, نہ پوری دنیا کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں آتی. تو میں تو مذہبی لوگوں کو اس سحر سے نکالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہوں. مذہبی لوگوں کو, مذہبی لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو اسلام کا امیج دنیا میں اچھا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آج سے مر جاؤ مگر کسی عامل کے پاس, بھلے جن آ جائے, پہلے تو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاؤ. 99.9% کیس دماغ کے ہوتے ہیں, کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی. اگر آپ شروع میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو وہ میڈیسن سے کور کر لے گا. نہیں گئے نا شروع میں تو اتنا معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ جو نفسیاتی ڈاکٹر آپ کے ساتھ تھوڑے دن گزارے گا نا, وہ بھی کسی عامل کے پاس جا رہا ہوگا بیٹھ. پاگل کے ساتھ رہ کے نا بندہ خود پاگل ہو جاتا ہے. تو جو میں اصل بات کرنے والا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچائیں اپنے آپ کو, اور ان چیزوں کی بیس توہم پرستی ہے, کوئی دلیل نہیں ہوتی, بس وہم. تو وہم سے نکالو اپنے آپ کو. اور یہ وہم غیر مسلموں میں بہت ہے. کسی نے کہیں چھوڑ دیا کہ بھئی 13 کا عدد منحوس ہوتا ہے. اب کتنے ممالک ایسے ہیں 13ویں منزل ہی نہیں ہے, 12ویں کے بعد ڈائریکٹ 14ویں شروع ہو جاتی ہے. پتہ نہیں کون سا بابا ان کو کہہ کے چلا گیا تھا کہ 13 کا عدد منحوس ہے. ہمارے یہاں محرم سفر کو منحوس مان لیا. ہم چیخ چیخ کے تھک گئے, بھائی کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے, لیکن نہیں کریں گے شادی بیاہ لوگ اس میں. اور جب ان کو کہا جائے نا میں کرو نکاح محرم میں سفر میں, تو کہتے ہیں کوئی فرض ہے کیا, ہم ربیع الاول میں کیوں نہیں کر لیں؟ بھائی فرض واجب تو نہ ربیع الاول میں, نہ سفر میں, نہ محرم میں, نہ رمضان میں. بات یہ ہے کہ آپ کی شادی کی ڈیٹ محرم میں طے ہو رہی تھی, محرم کی بیس پہ جو آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہو, اس کا مطلب یہ توہم پرستی ہے. محرم میں شادی ہونا نہ ہونا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. یہ جو آپ کے ذہن میں وہم ہے نا, بغیر دلیل کے فیصلے کرنا, اس کا علاج زیادہ ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ اور اس کا علاج جب ہوتا ہے جب آپ اپنے وہم کے اگینسٹ چلنا شروع ہو جائیں, جب آپ اپنے جو وہم پیدا ہو رہا ہے اس کے الٹا چلنا. جیسے کسی کو وہم ہو رہا ہے نا کہ یہ عامل لوگ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, عاملوں کو گالیاں دینا شروع کر دیں, یہ خوف دل سے کیا ہو جائے گا, نکل جائے گا. مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کسی عامل کو میں نے برا بھلا کہا, اس عامل نے کہا بیٹا تیرے پاس اب 24 گھنٹے ہیں, بس 24 گھنٹے میں پڑھائیاں کر رہا ہوں, اب میں پڑھائیاں کروں گا, جن آئیں گے, چڑیل آئے گی, بھوت آئے گا, یہ ہوگا, فلانا ہوگا, ڈمکانا ہوگا. تو وہ بندے نے مجھے فون کیا, پرانا قصہ ہے, کہتا ہے مفتی صاحب 24 گھنٹے نا مجھے وہ ہو گیا تھوڑا سا, اللہ خیر کرے, تو میں اس عامل سے سوری کر لوں. میں نے کہا نہیں. کہہ رہے پھر میں یہ ڈر کیسے نکلے؟ میں نے کہا ڈر ایسے نکلے فون کر کے اور سنا دے. میں نے کہا 24 گھنٹے سے پہلے جو تو کانپ رہا ہے نا, یہ وہم ہے, اس کے اگینسٹ چلنا شروع. فون اٹھا کے اس کو بول بھائی تو 24 نہیں, تو 12 گھنٹے میں کر لے جو کرنا ہے, اور تیرے باپ میں وہ طاقت ہی نہیں ہے. تو تھوڑا معذرت کے ساتھ ابیوزیو لینگویج استعمال کر رہا ہوں, لیکن اب تمیز سے نہیں ان کو لوگوں کو سمجھایا جاتا. بولے تو ایسا کر, چڑیل نہیں, تو چڑیلوں کی سردار بھیج میرے پاس, اور میں یہاں بیٹھوں, میرے گھر آ کے پڑھائیاں کر, تو دیکھتا ہوں آج تیرے میں دم کتنا ہے, آج میں دیکھتا ہوں. میں نے کہا اور اگر یہ ہو رہا ہے نا, یہ جو ایسے کر کے اس کو ڈانٹ رہے ہیں کہ جی دیکھیں وہ دیکھیں کائنڈلی آپ پلیز دیکھیں پلیز. میں نے کہا پھر 24 نہیں 12 گھنٹے میں تیرے ساتھ وہ کچھ ہو جائے گا جتنا تو سمجھ رہے ہیں نا اس کا ڈبل ہو جائے گا. وہم تو ایک بہت بڑی بیماری ہے. آپ جب ایک فرض کر لیتے ہیں نا تو بہت نقصان ہوتا ہے آپ کو. تو یہ نکالو گے نا اپنے آپ کو, اپنی عورتوں کو بھی نکالو اس عذاب سے.
कोई जिन चुड़ैल भूत बिल फर्ज आ भी गया तो सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, इमाम साहब से बोलो वो दम कर देंगे, बस इससे ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पेशेंट ठीक हो जाए तो भी यही इलाज है, ठीक नहीं हो तो भी यही इलाज, इससे ज्यादा आगे बढ़ना नहीं है। अव्वल तो जब ये कॉन्फिडेंस पैदा करोगे तो आएगा ही नहीं जिन। मैंने ऐसे लोगों को देखा रातों को अकेले कब्रिस्तान में सोते हैं। आप में से कोई भी रात कब्रिस्तान जाए ना 2 बजे, कोई ना कोई चुड़ैल नजर आएगी। गोरकन को कभी नजर नहीं आती। ये जो हमारा अंडा मोड़ से आगे कब्रिस्तान है ना, यहाँ बहुत लोगों ने सरकटे देखे हैं। मैंने आज तक कोई सरकटा जितने देखे जुड़े हुए सर वाले लोग ही देखे हैं, लेकिन रिपोर्टें हैं कि हमने वो पापोश के कब्रिस्तान में सरकटा देखा, और वो बताने वाले भले नेक लोग होते हैं भाई, उनके दिमाग में चूंकि एक वहम पैदा हो गया, उनको सरकटा भी नजर आएगा, एक आंख वाला भी नजर आएगा, चुड़ैल भी नजर आएगी, भूत भी नजर आएंगे उनको। आप कॉन्फिडेंस पैदा करो, आप कब्रिस्तान में जाओ। कब्रिस्तान में तो और भी खौफ नहीं होना चाहिए। वजह उसकी है कि खौफ तो जिंदों से होता है, मुर्दे तो बेचारे मरे इसलिए कि अब किसी काम के, वो मौत नाम ही इसी चीज का है। मैं अक्सर एक वाकया बताता हूँ ना, एक साहब ने कहा कि मैं मजार पे जा रहा हूँ, मुझे फालिज हुआ है जो है ना, तो मैं मजार पे जाऊंगा, मैं दुआ मांगूंगा ताकि बाबा की बरकत से मेरा दूसरा धड़ भी, मेरा फालिज खत्म हो जाए। मैंने कहा भाई जिस बाबा की कब्र पे जा रहे हो उनके दोनों धड़ काम नहीं कर रहे हैं, तो तुम्हारा आधा धड़ तो कम से कम काम कर रहे हैं ना। तो जिसके दोनों धड़ काम ना कर रहे हो, वो उसका धड़ कैसे सही कर सकता है जिसका एक धड़ काम ना कर रहा हो। उनको तो अगर कर रहे होते तो वो अपना धड़ पहले सही करते ना। तो मुर्दों से तो बेचारे वैसे ही खौफ नहीं होना चाहिए, लेकिन जिन चुड़ैल भूतों के जितने वाकयात कब्रिस्तानों से मुताल्लिक हैं, इतने कहीं और से मुताल्लिक नहीं है। नजर भी आ जाते हैं लोगों को, वहम होता है। तो इसलिए अपने आप को ना रियलिटी की दुनिया, घर में चोरी हो रही है, चोर का पता नहीं चल रहा, जिन पे मत डालो। बहुत केस मैंने ऐसे पकड़वाए हैं, लोग कह रहे यार कोई भी चोरी नहीं कर रहा, पता नहीं लॉक कहां से खुल जाता है। मैंने कहा अंदर ही का चोर है, कह रहे नहीं हमारे घर में। मैंने कहा भाई हो नहीं सकता। मैंने कहा खुफिया कैमरा लगा दो कहीं से। तो बैंकों से चोरी होती है, कभी देखा बैंक ने हिसाब किताब में गड़बड़ आ रही है बैंकों में ना, साल के आखिर में ऑडिट होता है ना, पूरा करोड़ों रुपए का हिसाब, पता चला जी करोड़ों रुपए में गड़बड़ हो रही है। कभी देखा बैंक के जो ऑडिट करने वाले हैं उन्होंने कहा इस दफा कुछ चुड़ैल का केस लग रहा है या कोई जिन ने लॉकर से पैसे निकाले। तो इसलिए अपने आप को इस शहर से निकालो। खैर मैं लुकमान अलैहिस्सलाम की बात कर रहा था, तो पहली बात अपने बच्चों को भी जिन चुड़ैल भूत के बारे में मजबूत कर दो। माँ बाप उल्टा जिन्नात से बच्चों को डरा रहे होते हैं। आपको पता है कि नफ्सियाती डॉक्टर ने बताया कि जितनी नफ्सियाती बीमारियां हैं ना, इनकी बुनियाद बचपन में माँ बाप ने रखी होती है। अक्सर ये बचपन की बीमारियां होती हैं जो बड़े होकर निकल रही होती। माँ बाप ने उनके लाशऊर में जिन डाल दिया, चुड़ैल डाल दी, भूत डाल दिया। माँ बाप डराते ना जिन बाबा आ रहा है, जिन बाबा आ रहा है। भाई ये बहुत खतरनाक है। बच्चों को ऐसे कार्टून दिखा रहे हैं जिनमें जिन चुड़ैल भूत दिखाई जा रही हैं, बच्चे बहुत डर जाते हैं इससे और उनके लाशऊर में खौफ पैदा होता है। फिर वो लाशऊर वाली चीजें उनको नजर भी आना शुरू हो जाती हैं। अचानक रात को चीखेगा अब्बू ये चुड़ैल खड़ी हुई है सामने जी। ये सारे हो रहते हैं, या तो मोबाइल पे देख रहा है या कंप्यूटर पे देख रहा है, या उसको स्कूल में कोई जिन चुड़ैल भूत की बात कर रहा है, या माँ बाप उसको जिन चुड़ैल भूत से डरा रहे होते हैं। बच्चों में तो कॉन्फिडेंस पैदा करो, बेटा किसी से डरते देखो, मैं तो सिर्फ तुम्हारी अम्मा से डरता हूं, मैं इसके अलावा मैं किसी से नहीं डरता। तो तुम भी अपनी माँ से डरा करो, बस समझ रहे हैं ना, सिर्फ अपनी माँ से डरा करो और माँ बताए अपने बाप से डरा करो, बाकी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बहादुरी, हमने ऐसे बच्चे भी देखे बिल्लियों को यूं करके दुम से उठा लेते हैं, डरते ही नहीं है। और ऐसे बच्चे भी देखे चूहा देख के भाग जाते हैं वो। तो वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुव यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। लुक़मान अलैहिस्सलाम ने पहली नसीहत ये की कि अपने बच्चों को ये सिखाया जाए सबसे पहले अल्लाह का तारुफ। उसमें 2 तारुफ कि भाई हमें किसी ने पैदा किया है, हम खुद ब खुद पैदा नहीं हुए। सबसे पहले डार्विन के नजरिए पे रद्द करो बच्चों को, क्योंकि जब स्कूल जाएंगे डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे, उनके गुमराह होने का खतरा है। बताओ बेटा स्कूल में डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाएगी, एज ए साइंस थ्योरी पढ़ने में कोई हरज नहीं है, ताकि नॉलेज हो आपकी। लेकिन बेटा हम बंदर से नहीं बने, ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक सेल ऑटोमेटिकली तरक्की करते 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 खुद ब खुद बंदर बन जाए और खुद ब खुद वसीम भाई और गफ्फार भाई और सत्तार भाई बन जाए। बेटा ये अकलन मुमकिन नहीं है, नामुमकिन है। ये चीजें बच्चों को पहले से सिखा दो, ये हो नहीं सकता। एक साइंटिस्ट ने बड़ी प्यारी बात की, एक फ्रांस का एक साइंसदान है, मुझे नाम उसका याद नहीं है, तो याद था भूल गया, क्योंकि गोरों के नाम बड़े मुश्किल किस्म के होते हैं ना। अगर गफ्फार भाई नाम होता तो याद रहता हमेशा से। भाई फ्रांस का साइंसदान था, वसीम नाम था उनका, वसीम मोतीवाला, वसीम कबाड़िया, कुछ भी होता। अब उनका नाम ऐसे मुश्किल
फ्रांसीसी नाम है, मुंह से निकलता ही नहीं है। तो उसने एक बात लिखी कि हम अपनी जेब में 10 पर्चियां डालें, 10 पर्चियां डालें और हर पर्ची पे लिखे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह गिनती लिख दें। फिर हम उन पर्चियों को निकालना शुरू करें। तो क्या ये मुमकिन है कि पहले नंबर पे इत्तेफाक से पहली निकले, दूसरे नंबर पे इत्तेफाक से दूसरी निकले, तीसरे नंबर पे इत्तेफाक से तीसरी निकले, चौथे नंबर पे? ये हो सकता है? उसने कहा ये फिर भी हो सकता है अगर 1 अरब दफा इस अमल को दोहराया जाए। 1 अरब दफा ये अमल करें ना, तो मे भी पॉसिबल है कि ऐसा अजीब इत्तेफाक हो जाए कि पहले नंबर पे पहली, दूसरे नंबर पे इत्तेफाक से दूसरी, तीसरे नंबर पे इत्तेफाक से तीसरी। लेकिन ये जो सेल है ना, सेल, एक खुलिया, हमारे जमाने में इसको खुलिया कहते थे, आजकल खलिया कह रहे हैं, पता नहीं क्या है सही। अरबी में मेरा ख्याल है खुलिया लफ्ज़ सही बनता है। तो एक जो इकाई है ना इंसान की बॉडी की, जो एक ईंट है, ये एक ईंट में जो एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, एक सेल जो भी इंसान का नहीं, कोई भी जानदार का, चाहे वो पौधे का ही क्यों ना हो, उसमें जो एलिमेंट इस्तेमाल हुए हैं, उनकी जो एडजस्टमेंट है, जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से उनको एडजस्ट करके बनाया गया है, एक सेल अगर इत्तेफाक से लॉ ऑफ चांस के तहत वजूद में आया है, तो इसमें अरबों साल लगे तो एक सेल के वजूद में आने का इम्कान है, कई अरब साल, समझ रहे हैं? जबकि जमीन की उम्र इतने अरब साल नहीं है, 5-6 अरब कहा जाता है कि 5-6 अरब साल पुरानी जमीन। तो जमीन में एक सेल मेरे भाई लॉ ऑफ चांस के तहत वजूद में आने के लिए खरबों साल चाहिए, जबकि जमीन की इतनी उम्र नहीं है। खरबों साल में शायद ऐसा हो जाए, वो भी यकीन नहीं है। और उसमें भी फिर उस सेल का इवॉल्व होके 2 सेल में तकसीम, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर पूरा पौधा बनना, फिर पूरा फल बनना, फिर पूरा जानवर बनना, फिर वो जानवर से तरक्की करते करते बंदर बनना, बंदर से इंसान बनना। ये अगर बिलफर्ज हुआ भी है, वो तो नामुमकिन है ऐसा इत्तेफाक, तो इसके लिए खरबों खरबों साल चाहिए, जबकि कायनात की इतनी उम्र है नहीं। फिर भी होगा नहीं, लेकिन अगर फर्ज करें तो शायद इस तरह से हो जाए। तो बच्चों को बचपन से ही सिखा दो, बेटा हमें बनाया गया है, हम ऑटोमेटिकली बने नहीं है, वरना वो कल जाके मुल्हिद होगा, एथियस्ट होगा। आप कह सकते हो मुल्हिद हो जाए जहन्नम में, अपनी मर्जी से हो रहा है, आपको पहले जहन्नम में फेंकवाएगा, फिर जहन्नम में जाएगा बाद में, दुनिया भी आपकी जहन्नम बनाएगा। क्योंकि जो एथियस्ट होता है वो इंसानी हुकूक की बातें बहुत करता है, इंसानी हुकूक का अलम बरदार बिल्कुल भी नहीं होता।